مرد کی نفسیات ہے، وہ کبھی اپنی محبت کا اظہار لفظوں میں نہیں کرتا۔ وہ کبھی ماں کو نہیں بتا پایا کہ اسے ان کے بغیر گھر ادھورا لگتا ہے۔ وہ کبھی بہن کو نہیں بول پایا کہ اسے اس کی شرارتیں اچھی لگتی ہیں۔ وہ ساری زندگی اپنے بیوی بچوں کے لیے سڑکوں پہ جوتے گھستا ہے نفیس بھائی، لیکن وہ کبھی اپنے بیوی بچوں سے نہیں بول پایا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ مرد کی محبت دیکھنی ہو تو دیکھو وہ آپ کی کتنی فکر کرتا ہے، وہ آپ کی کتنی کیئر کرتا ہے۔ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں آج کل کے لوگ، رشتہ وہیں تک رکھتے ہیں جہاں تک ان کا مطلب ہو۔ مطلبی دوست ہے، مطلبی یار ہے۔ چیز نوٹس کی ہے، ہر خاندان میں ایک شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو سب کا احساس ہوتا ہے نفیس بھائی، سب کے دکھ اپنے لگتے ہیں، وہ ہر کسی کو سہارا دیتا ہے مگر خود تکلیف کی گھڑی میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ جب اپنوں کے بیچ بیٹھے ہوئے آنکھیں آنسو سے بھر آئیں اور سب سے چھپا کر آنکھیں صاف کرنی پڑیں، ہونٹوں پر جھوٹی مسکراہٹ سجانی پڑ جائے، تب زندگی بڑی ظالم لگتی ہے۔ دل نہیں کر رہا جینے کو، کوئی زہر ہی دے دے پینے کو۔ دل نہیں کر رہا جینے کو، کوئی زہر ہی دے دے پینے کو۔ آنکھ ایسی لگے پھر آنکھ نہ کھلے، آنکھ ایسی لگے پھر آنکھ نہ کھلے، تھوڑا تو چین ملے سینے کو۔ ایک بات کہوں کہ رشتے میں جب دوریاں بڑھنے لگے تو لڑائی جھگڑے کرنے کی بجائے آپ خاموش رہنا سیکھ لیجئے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ پرابلم کہاں ہے تو اس انسان کو بھی تو پتا ہوگا کہ پرابلم کہاں ہے، اس لیے آپ لڑنے کی بجائے 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اگر آپ کی خاموشی اس انسان کو پریشان کرتی ہے، وہ انسان خود بخود آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کیا پرابلم ہے، کیوں بدل رہے ہو، کیوں دور ہو رہے ہو۔ اور اگر اس شخص کو آپ کی دوری پریشان نہیں کرتی تو آپ کے لیے اشارہ ہی کافی ہے نفیس بھائی کہ رشتہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ سوچ سمجھ کر زندگی گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی۔ یاد رکھنا قبر میں صرف اور صرف عبادت کام آئے گی۔ مسئلے ہیں بہت درمیاں خدایا، مسئلے ہیں بہت درمیاں خدایا، جسم ہے قید روح پریشاں خدایا۔ جوانی میں کمر جھکنے لگی ہے، میں چند دن کا لگتا ہوں مہمان خدایا۔ بکتے ہیں یہاں لوگ محبت میں اکثر، یہ عشق تو لگتا ہے دکان خدایا۔ میری جان ہی میری جان لے رہی ہے، میرا موت سے کیا ہوگا نقصان خدایا۔ کھلونا جان کر وہ توڑ گیا ہے، کھلونا جان کر وہ توڑ گیا ہے، میں اس شخص کو لگتا تھا بے جان خدایا۔ مرنے کے بعد رشتہ دار آپس میں بحث کرتے ہیں کہ کھانا ہماری طرف سے، کفن ہماری طرف سے، مگر وہی مرنے والا اگر بیمار ہوتا ہے تو کوئی نہیں کہتا دوائی ہماری طرف سے۔ کوئی دن سبھی کو رلا جاؤں گا، اگر موت آئی چلا جاؤں گا، ذرا پاس میرے بیٹھو بھی تم، ذرا پاس میرے بیٹھو بھی تم، سبب کیا ہے غم کا بتا جاؤں گا۔ میں نے زندگی سے سیکھا ہے صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں، اور عورت کا گھر بنتا تو نصیب سے ہے لیکن بستا اس کی برداشت سے ہے۔ اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ آپ نے کسی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اپنا وقت دیا ہے، اپنی نیندیں خراب کی ہیں، اپنی عادات، اپنا لہجہ، اپنی پسند ناپسند، زندگی جینے کا انداز تک بدل ڈالا ہے، اور ان سب کی انسان کی نظر میں بہت اہمیت ہوگی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مبارک ہو، آپ استعمال ہو چکے ہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو یہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ نمبر 1، زندگی میں ہمیشہ بڑی سوچ رکھنا، کیونکہ چھوٹی سوچ اور پیر کی موچ کبھی کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتی نفیس بھائی۔ اور دوسری بات، ہمیشہ اپنے کام کو لے کر ضدی بننا، لیکن ضد خود سے کرنی ہے، دوسروں سے نہیں۔ تیسری بات، ہمیشہ سب کا احترام کرنا اور ہر انسان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے رہنا، کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ صاحب، کیا مرد عورت کی خوبصورتی پہ مرتا ہے؟ مرد اگر کسی عورت کی خوبصورتی پہ مرتا ہوتا نا تو کوئی بھی عورت طوائف نہ بنتی۔ پتا ہے نفیس بھائی، مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے، اور عورت کی اسی ادا پہ مرتا ہے۔ اور ہاں، بے وفا عورت، بے حیا عورت گھٹیا مردوں کی وقت گزاری کا سامان بنتی ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ جو
लोग जानते हो बिछड़ जाने का दुख, वो साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। बहुत ख्याल रखते हैं वो अपने दिल का, इधर नहीं लगता तो उधर लगा लेते हैं। जो शय आंसू में बहा दी जाए वो दोबारा आंख की जीनत नहीं बन सकती नफीस भाई। चाहे वो मोहब्बत हो, अदावत हो, तवज्जो हो या फिर कोई इंसान। माँ के हंसते हुए चेहरे का भरम है वरना, माँ के हंसते हुए चेहरे का भरम है वरना जिंदगी यूं तो नहीं है कि गुजारी जाए। बुरा वक्त है जनाब, अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और दर्द भरे गाने रोज सुनने पड़ते हैं। ताल्लुक रहे ना रहे, एहतराम बाकी रहना चाहिए, उस इंसान का भी और उसके राज का भी। और ये इंसान के खानदानी होने की पहचान है। जहमत फिर से गवारा करते हैं, जहमत फिर से गवारा करते हैं। कुछ लोग मोहब्बत दोबारा करते हैं। इस दिल का तेरे बगैर क्या करूं, काट के कुछ तुम्हारा और कुछ हमारा करते हैं। मेरा काम है उनकी तस्वीर देखना, इसी से आजकल हम गुजारा करते हैं। ये रोज रोज के ताने अच्छे नहीं दोस्त, ये रोज रोज के ताने अच्छे नहीं दोस्त। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। देखे होंगे तुमने बहुत से दुखी चेहरे, मगर तुम्हें उससे क्या, दर्द उनका गम उनका, मगर तुम्हें उससे क्या। कर्ब से भरी आंखों का आंसू तुम न देख पाओगे। कोई बेमौत मरता है तो मर जाए, तुम्हें उससे क्या। कोई अपनी जान से जाए, तुम्हें उससे क्या। तेरी खुशी के ठिकाने बहुत होंगे, तेरी खुशी के ठिकाने बहुत होंगे, मगर मेरी बेचैनी की वजह सिर्फ तुम हो। अकेले हम ही शामिल नहीं उस जुर्म मोहब्बत में। निगाह जब भी मिलती थी मुस्कुराया तुम भी करते थे। जिस घड़ी तुमसे बात होती थी वही घड़ी मेरी कायनात होती थी। दिल तुम्हारा है हमेशा तुम्हारा होगा, दिल तुम्हारा है हमेशा तुम्हारा होगा। कौन कहता है मुझे इश्क दोबारा होगा। कि वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ। और ताल्लुक यूं नहीं रखता, कभी रख लिया कभी छोड़ दिया। और ताल्लुक यूं नहीं रखता, कभी रख लिया कभी छोड़ दिया। नफीस भाई मैं जिसे छोड़ देता हूँ मुसलसल छोड़ देता हूँ। तेरा मन परया। बात साहब, अगर रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा हो जाए तो? अस्सलाम वालेकुम। अगर नाखून बढ़ जाए तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। ठीक इसी तरह अगर रिश्तों में गलत फहमियाँ पैदा हो जाए तो गलत फहमियाँ खत्म करनी चाहिए नफीस भाई, रिश्ते नहीं। 3 चीजें करना बहुत मुश्किल है, राज को राज रखना, अपनी बेइज्जती को भूल जाना और फुर्सत का सही इस्तेमाल करना। अस्सलाम वालेकुम। नफ्सियात कहती है जिस इंसान ने आपको छोड़ना होता है ना, वो ये 2 काम करने लग जाता है। एक, उसका लहजा बदल जाएगा, जैसे वो पहले बात करता था ना वैसे बात नहीं करेगा। अब उसके लहजे में कड़वाहट आ जाएगी, उसका लहजा बदल जाएगा। दूसरा ये, अब वो हर वक्त मसरूफ रहने के बहाने करने लगेगा, उसकी बहुत सी मजबूरियां निकल आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ पानी और पसीने में बहुत फर्क है, सिर्फ पानी और पसीने में बहुत फर्क है, एक पत्थर और नगीने में बहुत फर्क है। अरे मुर्दा घड़ियों की तरह वक्त बिताने वालों, सांस लेने और जीने में बहुत फर्क है। कदर माँ की अगर कोई जान ले, कदर माँ की अगर कोई जान ले, अपनी जन्नत दुनिया में पहचान ले। जब तू पैदा हुआ कितना मजबूर था, ये जहाँ तेरी सोच से भी दूर था। हाथ पाँव भी तेरे अपने न थे, तेरी आंखों में दुनिया के सपने न थे। तुझको आता सिर्फ रोना ही था, दूध पी के काम तेरा सोना ही था। तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको चलना सिखाया था माँ ने तेरी, तुझको दिल में बसाया था माँ ने तेरी। अस्सलाम। ये जो शुरू में फास्ट रिप्लाई देते हैं ना, बाद में यही लोग नोटिफिकेशन से मैसेज पढ़ के अगले दिन रिप्लाई करते हैं। इस इम्प्रेस करने से लेकर डिप्रेस करने की अजियत को तुम मोहब्बत का नाम देते हो। हर बार अजीब अजीब डिमांड्स करने को तुम मोहब्बत का नाम देते हो। इस ज़हनी अजियत को तुम मोहब्बत का नाम देते हो। नफीस भाई याद रखें, जब मोहब्बत में हर चीज जायज हो जाए तो वो मोहब्बत नाजायज हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम।
दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपके आखिरी दिन आपका जनाजा कब्रिस्तान में रखा हुआ होगा तो आपके साथ क्या होगा? मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अजीब है लेकिन हकीकत है। जरा सोच के देखें, आपका जनाजा कब्रिस्तान में रखा हुआ होगा और आपके जनाजे में आए हुए कुछ लोग भले आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी बातों में लगे होंगे, कुछ सियासत के बारे में बात कर रहे होंगे, कुछ कब्रिस्तान में फेसबुक टिकटॉक के पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे होंगे, और कुछ को ये बेचैनी भी होगी कि कब इसको दफना कर हम अपने अपने कामों पर लौट सके। कुछ घंटों के बाद आपके घर से रोने की आवाजें भी आना बंद हो जाएंगी। एक बैठक में आपकी अच्छाइयों पर बात की जाएगी कि आप कितने अच्छे थे। फिर आपकी दुकान पर, आपके ऑफिस की सीट पर कोई और बैठ जाएगा, आपकी जगह ले लेगा। एक महीने के बाद आपकी फैमिली भी कॉमेडी शो देखकर हंसना शुरू कर देगी। सब कुछ आम और रोजमर्रा की तरह हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको बुला दिया जाएगा। एक मजदूर कहता है काश आज छुट्टी ना होती, मैं अपने बच्चों के लिए रोटी कमा लेता। मैंने एक मजदूर से पूछा आज ट्रैफिक कम क्यों है? वो बोला दिन हमारा है साहब जी, लेकिन मनाते कार वाले हैं। सबसे बड़ा यौम सोग उस दिन होता है जिस दिन गरीब की दिहाड़ी टूट जाती है नफीस भाई। जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया। एक रात खाली हाथ जब मजदूर घर गया, वो जले तो धूप में जलता है, वो जले तो धूप में जलता है। मजदूर के घर का चूल्हा यूं ही जलता है, यूं ही जलता है। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए होती हैं, सांसें और साथ। सांसें टूटने से इंसान एक बार मरता है और साथ टूटने से इंसान बार बार मरता है। नफीस भाई, गालिब क्या कहता है कि वो बिक चुके थे जब हम खरीदने के काबिल हुए, वो बिक चुके थे जब हम खरीदने के काबिल हुए। जमाना बीत गया गालिब, हमें अमीर होते होते। अस्सलाम वालेकुम। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या वहम से। अगर मेरी इस बात को आप गलत समझते हो तो आप समझदार हो, सही समझते हो। याद रखो जिंदगी एक पल है, याद रखो जिंदगी एक पल है जिसमें ना आज है ना कल है। अस्सलाम वालेकुम। ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, हर एक जिस्म घायल हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर। यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं है, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कदर कुछ नहीं है। जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, नफीस भाई मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो अपने हमसफर का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर छोड़ेगा तो मर जाएगा। उसकी गलती ना होने के बावजूद, सब खत्म होने के करीब होने के बावजूद वो उसे खोने के डर से माफी मांग लेगा, उसके आगे हाथ जोड़ लेगा। नफीस भाई, यही सच्ची मोहब्बत की निशानी है। ऐसा मर्द हीरा है और ऐसी औरत खुश नसीब। वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर, बस हम ही जरूरत से ज्यादा उम्मीद कर बैठे थे उनसे। मरना किसी का शौक नहीं होता, बस कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिनसे जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी लगती है। नफीस भाई, इतने बुरे नहीं थे हम कि जितने इल्जाम लगाए लोगों ने, इतने बुरे नहीं थे हम कि जितने इल्जाम लगाए लोगों ने। कुछ किस्मत खराब थी मेरी, कुछ आग लगाई लोगों ने। अस्सलाम। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि मर्द भूल जाता है मगर माफ नहीं करता, और औरत माफ कर देती है मगर भूलती नहीं। जुल्म सिर्फ औरत पर हाथ उठाना ही नहीं होता, तंजिया बातें, नफरत अमेज लहजे और बिला वजह झिड़कना, ये भी जुल्म के जिम्मे में आता है। नफीस भाई, कुछ मर्द कहते हैं औरत 2 टके की होती है। याद रखिएगा, औरत अपना मुकाम भूल चुकी है, लेकिन औरत कभी 2 टके की नहीं होती। हाँ, औरत की कीमत 2 टके लगाने वाला मर्द जरूर 2 टके का होता है। अस्सलाम वालेकुम। भाट साहब, क्यों खामोश बैठे? मेरे पास खामोशी के सिवा कुछ भी नहीं। मैं बात करता हूँ तो बात बिगड़ जाती है। कुछ ऐसा हो कि सभी राब्ते कट जाएं, कुछ ऐसा हो कि सभी राब्ते कट जाएं। नफीस भाई, रगे दिमाग की खाद से मैं फट जाएं। बिछड़ के आज रो दिए हैं। कोई अपना नहीं होता यार, कोई दोस्त नहीं होता, सबके सब मतलबी हैं और यहाँ की बात वहाँ बताने वाले। कुछ रहते हैं आग लगाने वाले। नफीस भाई, बहुत देर के बाद हुआ था भरोसा किसी पे, फिर ये साबित हुआ कोई भरोसे के काबिल नहीं।
तुम मुझे मशवरा तो देते हो, तुम मुझे मशवरा तो देते हो, तुम मेरा साथ क्यों नहीं देते?